क्लासिकल्स का जो एक समराइज्ड वर्जन है वहाँ यहाँ मैंने इक्वेशंस में लिखा है इसको, जो क्लासिकल्स की थियोरी है, राइट। सो सबसे पहले उन्होंने कहा कि आउटपुट और प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ लेबर ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड, राइट। इन द लॉन्ग पीरियड, एज वी ऑल नो दैट the output or production is a function of labor, land, capital and technology. But in the short run, as we know that capital, technology and land, or the amount of land, capital or technology remains constant. So we consider कि short period में उत्पादन सिर्फ और सिर्फ labor पे dependent होगा, right? That is why we have written this that output is a function of capital, technology and labor, but it is a long run production function. But short run में it will be Q is equal to function of labor alone, that is this N, right? And the supply of this labor is dependent upon the real wage rate, and there is a direct relationship between these two, that is labor का supply will increase with the increase in the real wage rate, and labor का supply will decrease with the decline in the real wages, right, or real wage rate. Alright, regarding the demand for labor, this ND is the demand for labor is a function of again real wage. It is again dependent upon the real wage, but it is an inverse function or indirect function, negative function of real wage rate. That is that there is a negative relationship between these two factors, that is real wages and demand for labor. That means if real wages will decline, then only demand for labor will be more, and if real wages will increase, then the demand for labor will be less, right? So opposite is the relation. Then all right, so this is where the equilibrium in the labor market comes, or we come to the labor market equilibrium where demand for labor is equal to supply of लेबर, राइट। तो जहां पे सप्लाई ऑफ लेबर, डिमांड फॉर लेबर एक दूसरे के बराबर होते हैं, और दो कर्व्स जो है डिमांड फॉर लेबर का कर्व और सप्लाई ऑफ लेबर का कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, देयर द इक्विलिब्रियम इज स्ट्राइक्ड, राइट। there will that is the point where there will be a situation of full employment according to the classicals, right? Equilibrium only happens at the point of full employment, right? Alright, there are a few people who have kept their mics on, right? So please mute yourselves. अपने आप को म्यूट करो फिर सुनो इसको, because बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है फिर otherwise. Alright, then coming to the saving and investment, that is which makes the equilibrium in the capital market and also in the goods market, is where saving is equal to investment, and both are the function of rate of interest. Saving is a function of rate of interest and investment again is a function of rate of interest, right? Now saving and rate of interest are positively related, right? That means if rate of interest increases, saving increases. If rate of interest declines, saving also declines, right? So there is a positive relationship between these two. But regarding the investment, that is a demand for capital. Investment means a demand for capital. So demand for capital will only happen when the rate of interest will be less. So the price of capital will be less, which is rate of interest, right? So if rate of interest will be less, then only investment will be more. If rate of interest will start rising, then investment will start declining, right? So there is an inverse relationship between the rate of interest and investment, opposite relationship, right? So equilibrium in capital market happens where saving is equal to investment, right? If there is any disequilibrium between these two factors, then it will be brought out, the equilibrium will be brought down through the changes or the flexibility in the rate of interest, right? Alright, then the equilibrium in the money market happens where supply of money, that is stock of money multiplied by its velocity will give you supply of money, is equal to demand for money, that is given by price multiplied by the total trade transaction, right? So if in the short period, if we consider V and T to be constant,
right? Velocity and total trade transaction to be constant. So in that situation, money and prices are directly and proportionately related to each other. मतलब quantity of money double होगा, price level भी double होगा. Quantity of money घटेगा तो price भी घटेगी, right? That is the general price, right? Which is determined through this quantity theory, which is being given by classicals again, right? So ये तीनों market का equilibrium is established where there is a full employment situation always, right? That is the theory of classicals, right? All right. So क्योंकि अब इसके बाद अब हम लोग जाने वाले हैं इसके criticism पे, right? नाउ जो क्लासिकल्स की थियोरी में थियोरी तब तक तो जब वैलिड थी जब तक कि ग्रेट डिप्रेशन नहीं आया था ऑफ 2930s, राइट? तब तक ये वैलिड थी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज में, तब के सिचुएशन में. बट आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन केम इन आफ्टर 1929 and 30s, after the that was the after effects of the World War One, right? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सो उसके बाद जो इकोनॉमीज में जो डिप्रेशन आया, एक रिसेशन का दौर आया, उसके बाद जो भी क्लासिकल्स की थियोरी थी that has invalidated that depression has invalidated the implications of this क्लासिकल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की. फुल एम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल सी फीचर है, कभी ओवर प्रोडक्शन की समस्या नहीं होगी, कभी बेरोजगारी नहीं आएगी, अगर आएगी भी तो इट विल बी फॉर अ शॉर्ट मोमेंट, दैट इज वेरी टेम्परेरी, राइट? और इकोनॉमी जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है अपने आप को, सेल्फ रेगुलेटिंग इकोनॉमीज होती हैं. बट दैट ऑल दीज पॉइंट्स वर invalidated during the time period of Great Depression when it came in, right? So वो जितने भी क्लासिकल्स के मत थे वो सारे रॉन्ग प्रूव हुए. ओवर प्रोडक्शन था, बेहद अनएम्प्लॉयमेंट था और वो मल्टीप्लाई होते जा रहा था. सो द गवर्नमेंट्स और द इकोनॉमीज कुड नॉट फाइंड एनी सोल्यूशन, राइट? सो दैट वाज द टाइम. और ये ऐसा नहीं है कि ये कीन्स ने ही ये देखा कि शॉर्टेज ऑफ जो प्रॉब्लम है क्लासिकल्स की थियोरी में, दैट इज नॉट जस्ट जैसे कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, से ने बोला है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. बट क्लासिकल्स में ही माल्थस ने भी फील किया कि जो प्रॉब्लम है डिप्रेशन में या अनएम्प्लॉयमेंट की जो वजह है वो शॉर्टेज ऑफ एग्रीगेट सप्लाई नहीं है बल्कि एग्रीगेट डिमांड की समस्या है. बट उसके लिए कोई वैलिड थियोरी माल्थस ने नहीं दी. बट कीन्स ने जब अपनी जब इसको कीन्स ने शॉर्टकमिंग्स तो देखे ही देखे क्लासिकल्स की थियोरी में जो थी, उसके साथ उसने एक थियोरी भी पेश की which is widely known as the general theory. और वो अपनी किताब दी जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी जो कि 1936 में छपी थी, तो उसमें ये प्रस्तुत किया था अपनी थियोरी को, राइट? उस थियोरी के बेसिस पे आज की काफ़ी सारी डेवलपिंग इकोनॉमीज ने काफ़ी सारे, और इवन इन दोज टाइम्स जब ग्रेट डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए फिर कीन्स के ही थियोरीज को अप्लाई किया गया था, राइट? सो क्या क्या शॉर्टकमिंग्स थी क्लासिकल्स की थियोरी में? तो पहला तो हम लोग पहले पॉइंट पे आए तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल, ये कीन्स का मानना है, राइट? क्लासिकल्स बोलते थे कि एम्प्लॉयमेंट सिर्फ और सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पे ही होगा एंड इट इज अ नॉर्मल फीचर ऑफ एनी इकोनॉमी. तो संतुलन जब भी होगा तो वो पूर्ण रोजगार की स्थिति में ही होगा. बट कीन्स ने बोला कि नो, इट इज नॉट ट्रू, ठीक है? इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन या ओवर प्रोडक्शन की समस्या हो सकती है और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारी इकोनॉमीज में एक्चुअल में पाया जाता है प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो, राइट? सो ऐसा नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट होता ही नहीं है, राइट? और ये अनएम्प्लॉयमेंट की वजह जो है लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड ही रहती है, राइट? या ओवर सेविंग की वजह से हो सकता है, मतलब सेविंग और इन्वेस्टमेंट में जो डिसइक्विलिब्रियम होता है उसकी वजह से हो सकती है, या ओवर प्रोडक्शन की वजह से हो सकती है, जैसे कि हमने ग्रेट डिप्रेशन के दौर में देखा कि वस्तुएं ओवर प्रोड्यूस हो गई थी, उनको डिमांड करने वाला कोई नहीं था, राइट? सो उसी वजह से वो भी एक रीजन था डिप्रेशन या रिसेशन के दौर को उत्पन्न करने का, राइट? सो ऐसा नहीं है कि इक्विलिब्रियम सिर्फ अंडर एम्प्लॉयमेंट में होता है, लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में भी इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल, और ये कीन्स ने अपनी थियोरी में प्रूव भी किया था. वो अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद, जब ये खत्म हो जाएगा तो कीन्स की थियोरी पे ही जाएंगे.
राइट। सो कैसे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी पॉसिबल हो सकता है, ये कीन्स ने अपनी थ्योरी में दिखाया कि सप्लाई और डिमांड एक दूसरे के एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी इक्विलिब्रियम पे हो सकते हैं, मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी इक्विलिब्रियम पे हो सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पे ही इक्विलिब्रियम आए, राइट। देन सेकेंडली ही हैज रेफ्यूटेड दी सेज लॉ। जेबी का जो नियम था, बहुत फेमस नियम, जो कि जिसके बेसिस पे क्लासिकल्स ने अपनी थ्योरी प्रोपाउंड की है। एक पॉइंट ये भी है जो कि जेबीसी ने दिया है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, राइट। बट ग्रेट डिप्रेशन में जब आया तो हमने देखा कि ओवर प्रोडक्शन इतना ज्यादा था, राइट। और जेबी से ने बोला कि जितना भी सप्लाई होगा सारा का सारा डिमांड उसके लिए ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो ही जाएगा। बट इट इज ऑल्सो अगेन नॉट ट्रू, क्योंकि सिर्फ लोग जो इनकम का भाग सिर्फ कंज्यूम ही नहीं करते, वो बल्कि सेविंग भी करते हैं, राइट। और फिर भी क्लासिकल्स मानते थे कि हाँ, अगर सेविंग होता भी है तो वो सारा का सारा निवेश कर दिया जाएगा, राइट। सो इसकी वजह से जो एग्रीगेट डिमांड, जिसमें कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों आ जाते हैं, और एग्रीगेट सप्लाई, राइट, सेविंग और जो वस्तुओं और सेवाओं की जो सप्लाई, राइट, वो सारी एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे हमेशा ही, राइट। बट इन रियलिटी इट प्रूव टू बी रॉन्ग, ठीक है। सप्लाई, सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर नहीं होते, एंड दे बोथ आर नॉट डिटरमिन्ड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहली बात तो। और दोनों ही अलग अलग चीजों पे डिपेंडेंट होती है, और सेवर्स अलग होते हैं, इन्वेस्टर्स अलग होते हैं, राइट। सो सेज लॉ ऑफ मार्केट जो है रॉन्ग प्रूव हुआ, राइट। और इन्वेस्टमेंट बहुत अलग चीजों पे डिपेंड करता है, अदर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ प्रॉफिट पे ज्यादा फोकस करते हैं एंटरप्रेन्योर्स, ना कि सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फोकस करते हैं। सिमिलरली सेविंग जो है इनकम पे डिपेंडेंट है, ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट है। इनकम होगी तभी तो सेव कर पाएंगे, राइट लोग। सो इसीलिए सेज लॉ जो है इनवैलिडेट हो जाता है। देन self adjustment is possible according to classical, but it proved to be wrong, right? It proved to be wrong if we historically see this, that self adjustment is not possible, right? Self adjusting adjustment कैसे कहा है कि flexibility of wages, interest and prices की वजह से इकोनॉमी जो है सेल्फ रेगुलेट कर लेती है और अल्टीमेटली फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को रिस्टोर कर लेती है। बट कीन्स का मानना है कि इकोनॉमी जो है सेल्फ एडजस्टिंग मैकेनिज्म के द्वारा काम नहीं करती है, बल्कि एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है उस इकोनॉमी को करेक्ट करने के लिए, जैसे कि एक गवर्नमेंट जो है एक एक्सटर्नल एजेंसी है, राइट, यहाँ पे। सो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत जरूरी है जब इकोनॉमी रिसेशन के दौर से गुजरे या कोई और प्रॉब्लम हो, राइट। उस टाइम पे एक एक्सटर्नल फोर्स का होना बहुत जरूरी है, राइट। देन नेक्स्ट जो है दैट इक्वालिटी ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट थ्रू इनकम चेंजेस, राइट। अब ये तो कीन्स का मत है, बट क्लासिकल्स बोलते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिटरमिन होते हैं। सेविंग भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और इन्वेस्टमेंट भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट है, राइट। और दोनों में इक्विलिब्रियम जो है ड्रॉ किया जा सकता है हमेशा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। बट कीन्स का मानना है कि सेविंग जो है वो इनकम पे डिपेंडेंट होता है, और इन्वेस्टमेंट भी इनडायरेक्टली इनकम पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि वो रेट ऑफ प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है, राइट। लोग देख रहे हैं कि रेट ऑफ प्रॉफिट कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट के मुकाबले, अगर रेट ऑफ प्रॉफिट ज्यादा है तो वो निवेश करेंगे, अगर रेट ऑफ प्रॉफिट कम है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के मुकाबले तो वो कम निवेश करेंगे, राइट। सो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट रेगुलेटिंग फैक्टर नहीं है सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इक्वालिटी के लिए, राइट। इट इज द चेंजेस इन इनकम दैट ड्रू द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम, राइट। देन यहाँ पे स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया है। इनका मानना है क्लासिकल्स का कि मनी इज ओनली डिमांडेड फॉर वन पर्पस, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट। लेन देन के लिए ही, और लेन देन ही एक मकसद और फंक्शन है मनी का। जबकि कीन्स ने अपनी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में बताया कि जो डिमांड फॉर मनी है वो सिर्फ ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए नहीं होता है, और भी दो पर्पसेस रहती हैं, जैसे कि प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेक्यूलेटिव मोटिव। तो पहले दो फैक्टर्स तो इनकम पे डिपेंडेंट है, बट स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी जो कि स्टोर करके रखना चाहते हैं लोग, तो वो स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी को दिखा रहा है, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट या बॉन्ड प्राइसेस में जो चेंजेस आते हैं
पे इन्वेस्ट करके लोग कमाई करना चाहते हैं, राइट, एक कमाई का जरिया है। सो उस डिमांड फॉर मनी के महत्व को यहाँ पे बिल्कुल ही इग्नोर किया गया है क्लासिकल्स के द्वारा। देन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बेसिस पे इन्होंने बताया कि प्राइस और मनी में हमेशा ही बिल्कुल एक एब्सोल्यूट रिलेशन रहता है, मतलब कि मनी 100 रुपए से बढ़ेगा तो प्राइसेस भी उतने ही परसेंटेज से बढ़ेगा, राइट। 100% से मनी सप्लाई बढ़ेगा तो 100% से प्राइसेस भी बढ़ेंगे, बट एक्चुअल में इट इज नॉट ट्रू। अकॉर्डिंग टू कीन्स जो रिलेशन है बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड द प्राइसेस इज टिल जब तक कि मनी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाने से उसका इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एक्सेट्रा और नेशनल इनकम पे रहता है, राइट। और उसके बाद जब फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन आती है, फिर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वैलिडेट हो सकती है कि जितना क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगा उतना ही प्राइसेस भी डबल हो रही हैं या ट्रिपल हो रही हैं क्वांटिटी ऑफ मनी के साथ साथ, राइट। बट बिफोर दैट फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ये नहीं होता है, इट इज नॉट ट्रू, राइट। Then money is not neutral. According to Keynes, money is not neutral, right? Classicals ने assumption लिया कि money is neutral, right? Which is not true. Money plays an important role in economies. That is the reason monetarist economists जो कि मिल्टन फ्रीडमैन जैसे लोगों ने जो मॉनेटरी पॉलिसी को इतना एम्फसाइज किया और बताया कि ये एक कितना इम्पोर्टेंट टूल है गवर्नमेंट के पास, है ना, टू रीडायरेक्ट एंड कंट्रोल और रेगुलेट द इकोनॉमीज, राइट, एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। सो इसी मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा कई सारे रिफॉर्म्स और रेवोल्यूशंस लाए जा सकते हैं इकोनॉमीज में। सो दैट इज द रीजन मनी इज नॉट न्यूट्रल। मनी ऑल्सो affects the rate of growth, development, employment, etc. things, right? So money is not neutral. Then refutation of wage cut. Now कीन्स ने अपनी थ्योरी, क्लासिकल्स बोलते हैं कि सीधा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस होती है, इस वजह से हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट पे हमेशा अचीव कर लेते हैं, राइट। सो वेज कट करके अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो वेज कट कर दो, वेज कट करने से कॉस्ट कट होगी, कटिंग हो जाएगी, कॉस्ट कटिंग होगी तो लोग और निवेश करेंगे, इन्वेस्टर्स और निवेश करेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा, और इस तरह से जो बेरोजगार थे उनको दोबारा रोजगार मिल जाएगा उस वेज कटिंग की वजह से, कॉस्ट कटिंग की वजह से, राइट। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। कीन्स ने कहा कि पीगू ने अपनी उसमें सिर्फ कॉस्ट इफेक्ट को लिया वेज करके, इनकम इफेक्ट को तो लिया ही नहीं, राइट। अगर वेजेस कम कर देंगे तो लोगों की आय कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी। जब इनकम कम हो जाएगी तो वस्तुओं से परचेजिंग पावर कम होगी, उनकी डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कम हो जाएगी, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कम होगी तो प्राइसेस घटने लगेंगे, प्राइसेस घटेंगे वस्तुओं सेवाओं के तो इन्वेस्टर्स का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा, राइट। प्रॉफिट कम हो जाएगा तो वो लोग लॉसेस बेयर करने से बजाय वो लोग क्या करेंगे, निवेश कम कर देंगे, निवेश कम कर देंगे तो रोजगार और बेरोजगारी और बढ़ जाएगी, लोगों को रोजगार खत्म हो जाएगा, और सो इस तरह से बेरोजगारी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट। तो वेज कट सिर्फ यहाँ पे एक ये डबल एज्ड स्वॉर्ड है, दो धारी तलवार जिसको बोलते हैं, है ना, कि एक सिर्फ यहाँ पे इनकम इफेक्ट को तो इग्नोर कर दिया है, सिर्फ कॉस्ट इफेक्ट को ही देखा गया है क्लासिकल थ्योरी में, राइट। सो दैट इज व्हाई दिस argument has been ignored or refuted by Keynes. Then next is no direct and proportional relation between money and real wages. क्लासिकल्स बोल रहे हैं कि मनी वेज और रियल वेज में बिल्कुल प्रत्यक्ष और समानुपात संबंध है, राइट। दैट मीन्स मनी वेज डबल होता है तो रियल वेज भी डबल होगा। दे हैव इग्नोर्ड, कंप्लीटली इग्नोर्ड द इफेक्ट ऑफ प्राइसेस ऑन दीज वेजेस, जबकि इट इज नॉट ट्रू। प्राइसेस हैज इट्स रोल टू प्ले, राइट। सो दैट इज द रीजन यहाँ पे रियल वेज और मनी वेज दो अलग अलग टर्म्स हैं, राइट। सो ये रिलेशन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, राइट। एंड जो लेबर होते हैं, कीन्स का मत है कि यहाँ पे उनको एक मनी इल्यूजन रहता है, ठीक है। अगर उनको लगता है कि मनी वेज उनका आज 10,000 से उसके ऊपर 500 रुपए और देंगे तो वो खुश हो जाते हैं कि हाँ 10,500 रुपए आज हमारा इनकम हो गया है, राइट। दे हैव अ मनी इल्यूजन। वो इग्नोर करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि प्राइसेस भी उतने ही परसेंट से बढ़ गई हैं, राइट। सो एक मनी इल्यूजन होता है। सो कीन्स का मत है कि बजाय कि रियल वेज, हाँ मतलब मनी वेज को कम नहीं करके भी हम रियल वेजेस घटा के भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं, ये कीन्स का मत है, right? So there is no direct and proportional relationship between the money and real wage. Then next is
स्टेट इंटरवेंशन इज एसेंशियल। क्लासिकल्स बोलते हैं कि गवर्नमेंट का रोल कहीं पे भी मान्य नहीं है इकोनॉमी में, है ना। इकोनॉमी इज सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ एडजस्टिंग, इट शुड बी लेफ्ट ऑन इट्स ओन, प्राइस मैकेनिज्म सारा कुछ देख लेगा और पूर्ण रोजगार की स्थिति हमेशा बनी रहेगी इकोनॉमी में, राइट। और एक इकोनॉमी स्टेबल गति से चलता रहेगा, बट एक्चुअल में इट डज नॉट हैपन, और ग्रेट डिप्रेशन में ये प्रूव हुआ। एंड देयर वाज नो इन्वेस्टर्स हु वर कमिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट एंड मेक इन्वेस्टमेंट एंड गिव एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड पीपल, क्योंकि वो खुद लॉसेस सफर कर रहे थे। सो ऐसे में स्टेट का इंटरवेंशन वाज वेरी नेसेसरी, विच इज बीइंग सजेस्टेड बाय जेएम कीन्स एट दैट मोमेंट। उस अपनी थियोरी में बताया कि गवर्नमेंट का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट आगे आके निवेश करेगी, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, जो कि बिना प्रॉफिट के मोटिवेटेड होता है। सो वहां पे लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों के पास परचेजिंग पावर आएगी, तो वस्तु और सेवाओं की डिमांड बढ़ेगी। जब वस्तु और सेवाओं की डिमांड बढ़ेगी ऑटोमेटिकली, तो धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। प्राइसेस बढ़ेंगे तो इन्वेस्टर्स को लगेगा कि प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशन बढ़ रहे हैं, तो वो भी निवेश करेंगे। जब वो लोग निवेश करेंगे तो और लोगों को रोजगार मिलेगा। इस तरह से बेरोजगारी की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है और रिसेशन के दौर से भी छुटकारा पाया जा सकता है, राइट। सो स्टेट का रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक अफेयर्स एज वेल। जबकि क्लासिकल्स बोलते थे स्टेट का रोल सिर्फ पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने से है मतलब, और इकोनॉमिक अफेयर्स में कोई रोल नहीं होना चाहिए, विच इज नॉट ट्रू अगेन, राइट। देन क्लासिकल्स ने जो थियोरी है वो एक लॉन्ग रन एनालिसिस पे बेस्ड है, बट कीन्स, जेएम कीन्स सेज दैट इन द लॉन्ग रन वी ऑल are dead, we all will be dead, so we should focus on short period only, right? So that is the reason Keynes ने अपने theory को short run पे based करके short run analysis दी है, right? Then next is wages are not always flexible. Now wages, क्लासिकल्स बोल रहे हैं कि वेजेस को कम ज्यादा करके हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट और इक्विलिब्रियम के सिचुएशन को बरकरार रख सकते हैं, बट एक्चुअल में वेजेस आर नॉट दैट फ्लेक्सिबल। जैसे क्लासिकल्स बता रहे हैं बहुत इजी टर्म्स में, ट्रेड यूनियंस होती हैं, लेबर यूनियंस होती हैं, जो कि प्रोटेस्ट करेंगे अगर उनका वेजेस को घटा दिया जाएगा, तो वो प्रोटेस्ट करने लग जाएंगी। तो इसीलिए वो बार्गेनिंग पावर जिसकी ज्यादा होगी एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉयज में से, तो वो उस तरह से वेजेस एडजस्ट होंगे। सो इट इज नॉट वेरी फ्लेक्सिबल कि बड़े इजीली और मतलब सिंपल शब्दों में कह देना, राइट। सो दे आर नॉट फ्लेक्सिबल इन एक्चुअल सेंस। देन it is not based, or the theory is not based on empirical facts। मतलब अगर हिस्टोरिकली भी हम लोग देखें तो क्लासिकल्स की थियोरी तो फेल हो गई है, राइट। और अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज में, तो इस तरह की इकोनॉमीज में तो क्लासिकल्स की इकोनॉमी जो सेल्फ रेगुलेटिंग इकोनॉमी, प्राइस मैकेनिज्म पे सब कुछ डिपेंडेंट, क्योंकि रोल ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज कंट्रीज फॉर मेकिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। जो निवेश करना है फॉर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, और हेवी जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें जो निवेश करना है वो सारा गवर्नमेंट ने ही इनिशिएट किया है। तो एम्पिरिकली अगर हम लोग देखें तो क्लासिकल्स की थ्योरी रॉन्ग प्रूव होती है। देन it only deals with the special case of what, that full employment situation कोई डील कर रहा है, full employment equilibrium कोई बता रहा है, less than full employment में क्या होगा, more than full employment में क्या होगा, वो classicals ने explain नहीं किया है, right? So these are the points on which Keynes mainly Keynes has criticized the classical theory of employment, right? But ऐसा भी नहीं है कि थियोरी बिल्कुल इनवैलिडेट है, मतलब कि कोई वो नहीं है। कीन्स ने बोला है कि थियोरी जो है लॉजिकल है, लॉजिकल तो है, बट अकॉर्डिंग टू द गिवन सर्कमस्टांसेस वो उसमें जो चेंजेस लाने चाहिए वो भी रिक्वायर्ड है, राइट। सो ये कीन्स का मत था। सो दिस इज इट, आई थिंक।